Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you 6 science the living organism and their surroundings, lecture number 4. Exercise हम देखने जा रहे हैं. Choose the correct option in the following sentence. It means MCQ. Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? तो इसका आंसर आएगा option C. Both the statements are correct. Several kinds of plants and animals may share the same habit. All the animals and plants in a habit are adapted to it. ये दोनों आएंगे आंसर. Animals and plants have certain features which make them to survive in a particular habits. This is called adaptation. Adaptation होगा तो वो उस situation में अपने आप को ढाल सकेगा, otherwise नहीं. थर्ड, विच इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. कौन सी चीज़ें? तो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फोर, विच इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है एनवायरमेंट का? तो बैक्टीरिया इज नॉट अ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. फिफ्थ, which is an example of animal found in mountain region. तो इसका आंसर आएगा all of this. माउंटेन गोट, याक, लेपर्ड तीनों ही हमें माउंटेन रीजन में मिलते हैं. What are the characteristics of desert plant? desert plant के characteristics भी all of this है. None, no leaves or very small leaves, spines, deep roots. Respiration in aquatic animals occurs by gills. respiration जो होता है वो aquatic animals में किसके थ्रू होता है? तो gills के थ्रू. Which is an aquatic adaptation? तो streamline body जो है वो aquatic adaptation है. streamline जिसका shape होता है. Bending of a stem towards sunlight is called phototropism. जो होता है वो bending of stem towards sunlight is called phototropism. Sunken stomata are present in xerophytes. Sunken stomata जो होते हैं वो किस में present होते हैं? तो xerophytes में वो present होते हैं. Fill in the blanks देखते हैं. First, the presence of specific features which enables a plant or an animal to live in a particular habit. पर्टिकुलर हैबिट में रहने वाले क्या होंगे? एडेप्टेबल होंगे. एडेप्टेशन आएगा आंसर. द हैबिट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. द हैबिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. सॉइल, वाटर एंड एयर आर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द हैबिटेट्स. चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम. हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं हम जिसका रिस्पॉन्स करते हैं दैट आर कॉल्ड स्टिमुली. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन in one word. Name some plants found in mountains. तो oaks, pinus and deodars. What is habitat? The place where organisms live. ऐसे place जहाँ organisms रहते हैं which provide food and safety for them is called habitat. जो food और उनको safety provide करते हैं is called habitat. Name a few habitats. तो forest, grassland, mountains, ponds and oceans etc. are called few habitats. Name two organisms that live in desert. दो organisms जो desert में रहते हो. तो cactus, camel, desert rat. नेम अ फ्यू प्लांट्स दैट लिव इन पॉन्ड्स. कुछ प्लांट्स जो पॉन्ड्स में रहते हो तो हाइड्रिला, लोटस, हाइकिंथ ये सारे प्लांट्स जो होते हैं वो रहते हैं. 6. नेम द हैबिटेट वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ फिश लिव. ऐसे हैबिटेट बताओ जहाँ पे वेरियस तरीके के फिश रहते हैं. तो पॉन्ड, रिवर एंड सी. उसी तरीके से नेम अ कॉमन थिंग इन ऑल फिशेस. फिशेस में कॉमन थिंग्स क्या है? तो गिल, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स, टेल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल? गिल का फंक्शन क्या है? तो गिल हेल्प the fish to absorb oxygen dissolved in water. Number 9. Name the animal which is called the ship of desert. ऐसे animal जो ship है desert का तो it is called camel. Name various types of habitat. कुछ types के habitats आपको बताने हैं. तो terrestrial habitat, aquatic habitat and aerial habitat. Name two aquatic animal. दो aquatic animal के नाम बताने हैं. तो fish and tortoise. Name two terrestrial organism. Terrestrial organisms तो cat and dog. Name two examples of aerial habitat animal. दो examples बताने aerial habitat animals के तो birds and mosquitoes. Name the types of components of habitat. Types of components of habitat बताना है. तो components of habitat are biotic components और abiotic components. ये दोनों क्या होंगे? components होंगे. Give two examples of each biotic and abiotic components. हमें दो example देने हैं biotic और abiotic components के. तो इसका आंसर होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स, एयर एंड वाटर आर एबायोटिक कंपोनेंट. प्लांट और एनिमल जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एयर और वाटर एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं. शॉर्ट में आंसर तो फॉलोइंग करना है. व्हाट आर द डिफरेंस इन द डेजर्ट एंड सी रीजन. तो इन द सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर. Most of them use the air dissolved in water for breathing. In desert, a very little amount of water is available. It is very hot in the daytime and very cold at night. The organisms breathe air from the surroundings. What do you mean by accumulation? Accumulation क्या होता है? The small changes which take place in the body of a single organism. Small take changes होता है simple organisms में. Over short period to overcome small product due to changes in the surroundings are called accumulation.
वाई डू वी नीड एबायोटिक फैक्टर? एबायोटिक फैक्टर हमें क्यों नीड है? तो एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। दिस एबायोटिक फैक्टर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। ये एबायोटिक फैक्टर ग्रोथ के लिए, एनिमल के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाउ आर सम एनिमल अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट? कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहने को कैसे अडेप्टेड होते हैं? सम एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नेक्स डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल्स टू स्टे अवे फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हीट ड्यूरिंग द डे। दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। वो सैंड के अंदर रहते हैं, इस वजह से वो एडेप्टेबल रहते हैं। दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। वो सिर्फ नाइट में आते हैं। फिफ्थ, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट? कैक्टस कैसे अडेप्टेड है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए? तो कैक्टस आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एज दे हैव नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स to prevent water loss through transpiration. Stem is modified in such a way that it performs photosynthesis and conserves water. The roots go very deep into the soil for absorbing water. इस सारी चीज़ें आप देख लेना, वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ये वाला भी लिख लीजिएगा। ओके, आंसर इन ब्रीफ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, फूड गिव्स एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स ग्रोथ, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टिमुली करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। टेबल दिया गया लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग को फूड चाहिए, एयर चाहिए, नॉन लिविंग थिंग को किसी भी चीज़ की नेसेसरी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव और स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये लोग नहीं कर पाते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर पाते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग्स नहीं करते। लिविंग एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल देते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में ये वन टाइम के लिए लिखना पड़ेगा। इट इज़ योर होमवर्क ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर होता है चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।